اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 14 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق سے چند سوال لیں گے۔ فی سماواتی کا معنی بتائیے۔ آسمانوں میں، زمین میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، ABCD۔ آسمانوں میں۔ درست فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ کہ یہ ایک پارہ ہی کیوں نہ ہو، ایک سورہ ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پورا قرآن ہی کیوں نہ ہو، ABCD۔ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ درست۔ مالک الناس کے معنی بتائیے۔ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا خالق، پیدا کرنے والا، لوگوں کا مالک، ABCD۔ لوگوں کا بادشاہ۔ مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ القصر کو پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ گرامر میں ہم ضربا، سامعہ، علمہ اور عاملہ کے علاوہ ماذا جو ہے اسے بھی دیکھیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 4500 کے قریب آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 36,500 بار آئے ہیں۔ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی جو 50% جو ہے قرآن کے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ آئیے اس سورت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا تعارف لے لیں۔ یہ ایک مختصر مگر جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کے نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی، ان میں سے 2 آپ کی اپنی ذات کے لیے انسان کی اور 2 اس کے نفس کے تزکیہ کے لیے ہے، یعنی عقیدہ اور اعمال صالحہ۔ اور ان میں سے باقی 2 جو ہیں وہ معاشرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو حق کے بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو آئیے اس سورت مبارکہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر ایک لفظ انتہا ہے، یعنی قرآن کے انداز اور اسلوب کی انتہا ہے کہ اس پوری آیت صرف ایک لفظ پہ ہے، اور لفظ بھی کیسا؟ والعصر، بڑھ کے میں نے یہاں پہ قسم کیا۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کل مختار ہے، ہر چیز اس کی ہے، وہ جیسا چاہے، لیکن تو قسم کھا کے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے بعد آنے والا حصہ جو ہے وہ کوئی اہم حصہ ہے کہ اللہ نے صرف ایک لفظ کہا اور وہ بھی قسم کھا کے۔ یہ قسم انسان کب کھاتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زور دینا چاہتا ہے، بہت ہی حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے جو ہے وہ مبرہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے۔ واقعی میں نہیں، ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا واقعی میں نہیں ہوتا ہے اور یہ ایک دوسری معنی آج ہم نے سیکھی ہے، واقعی میں نہیں ہوتا ہے قسم۔ یہ قرآن میں کئی اور جگہ پہ بھی آتا ہے، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء، یعنی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم کے طور پہ جو ہے ان صورتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے والعصر کو بھی دیکھتے ہیں۔ عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا عصر حاضر۔ آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنا احتساب کریں ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنی اصلاح کا پلان بنائیں اور دوسروں کو جو ہے اس کی تبلیغ کریں۔ تو اس کے اسباق لیتے ہیں کہ اس ایک لفظ کے کیا اسباق ہیں۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے،
یعنی تاریخ وہ ہے، سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو اگلا حصہ دیکھیں، ان الانسان لفی خسر، کتنے الفاظ ہیں؟ 4۔ اور یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں 4 الفاظ آئے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں، اور جس میں 3 آئے وہ اس سے بھی اہم ہوتی ہیں، اور جو کم ہوتی جائے اور ایک آئے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تجزیہ کرتے ہیں اس کا۔ انا کے معنی ہوتے بے شک، اسے ہم نے یاد کیا تھا، ان اللہ مع الصابرین۔ الانسان، کون مجھے بتائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، جی، اسم ہے، کیسے پتہ چلا اسم؟ الف لام، الف لام، اسلام آ گیا۔ یعنی اسم کی ہم نے جو 3 پہچان یا علامتیں پڑھی ہیں، یہ ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر، کلمے کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کی اہمیت یہ ہے کہ الف لام جب کسی کے پاس آئے تو اس سے مراد تمام ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا الشیطان، تمام شیطان، الانسان، تمام انسان۔ یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا کرتے ہیں؟ بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے، ان الانسان، تمام انسان، کیا؟ لفی، ٹکڑے کیجئے، لفی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی 2 ٹکڑے، 2 ٹکڑے، کون کون سے؟ لا اور فی، لا اور فی۔ لا کے معنی ہوتے ہیں لیے، فی کے معنی ہوتے ہیں لیے، ٹھیک ہے۔ لفی خسر، خسر کہتے ہیں نقصان، ایسا نقصان جس میں سب کچھ چلا جائے۔ مثلا ایک شخص کاروبار میں کچھ پیسہ لگاتا ہے، اس کا فائدہ اسے نہیں ہوا، یعنی اس کا صرف منافع چلا گیا، مال بچ گیا، یہ کوئی بڑا نقصان ہے۔ لیکن اگر اس کا وہ مال بھی ضائع ہو جائے تو یہ کیا؟ یہ خسارہ ہے۔ تو انسان اس دنیا میں جب آتا ہے وہ ایک کام کے لیے آتا ہے، ایک مقصد کے لیے آتا ہے۔ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہے پھر تو وہ کامیاب ترین انسان، اگر وہ نہیں ہے تو وہ خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام انسان خسارے میں۔ یہ تو بہت ہی جو ہے ڈرانے والی اور بہت ہی لرزانے والی بات ہے کہ ہم تمام انسان خسارے میں اللہ تعالیٰ کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر کوئی تو ہوگا۔ بھائی اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ انا کو ہم جو ہے ان اللہ مع الصابرین سے یاد کرتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک 2 لفظ ہم نے سیکھے تھے، ایک تھا انا، ایک ان کے معنی ہے اگر۔ ان کو ہم کس کلمے سے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو الانسان کے معنی ہے وہ خاص انسان یا بنی نوع انسان۔ لا کے معنی البتہ ہے، فی معنی میں ہم نے دیکھ لیا ہے، یس۔ یہ لا کو ہم جو ہے یہ اس سے یاد کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ یہاں ہم نے دیکھا تھا لا کے معنی ایک ہوتے ہیں البتہ، تحقیق۔ لا کے ایک معنی ہم نے پڑھا تھا لیے، اور ایک ہوتا ہے البتہ، تحقیق۔ یہاں پہ یہ اس کے معنی البتہ کے آئیں گے۔ لا کو جب ہم مختلف چیزوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا اسم کے ساتھ جب لا کو ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے لیے، کے لیے، جیسے للہ ہے، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے۔ لیکن جب لام کو ہم فعل کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں تاکہ کے معنی میں، جیسے لیتدبروا، لیتدبروا کا مطلب تاکہ وہ غور کریں، لیتذکر تاکہ وہ ذکر کریں، نصیحت کریں۔ اور جب حرف کے ساتھ ہم ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ، تحقیق، جیسے لقد، البتہ تحقیق، لفی، یہاں البتہ تحقیق کے معنی میں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لام زبر اور لام زیر دونوں حالتوں میں آتا ہے، یہ بھی حرف ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور اس کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ تو یہ وہی لا ہے۔ اس لا کو جب اسم سے ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، اس کو جب کسی فعل کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، اور اس کو جب کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ، تحقیق۔ فی خسر، خسارہ، گھاٹا، ایسا خسارہ جس میں اصلی جمع پونجی بھی چلی جائے۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس خسارے سے بچائے، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم آیا خسارے کی طرف جا رہے ہیں یا منافع کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے خسارے سے بچانے کے لیے اس کا پلان بنائیں، دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں، اپنے آپ کو جو ہے اس پہ قائل کریں۔ آئیے اگلا حصہ ہم لیتے ہیں سورت کا۔
والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ابھی دونوں حصوں کو اس نے ملا دیا ہے، 4 بار تاکید کی. کیا؟ پہلے قسم کھائی، پھر کہا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، پھر کہا البتہ، البتہ بھی تاکید کے معنی، اور پھر یہ بیان کیا اکثریت خسارے. اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی جب عربی کے اندر کلام کا اسلوب اس طرح آئے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ جو ہے کسی چیز پہ زور دیا جا رہا ہو، اس کا عربی کے علاوہ سمجھنا مشکل ہے. اردو میں اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں قسم، بے شک، البتہ، بیان، وہ جوڑ توڑ ہے، لفظی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں آتے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بے چینی میں کہ میں فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ مجھے خسارے سے بچائے. ہمارے امام کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ بھی اترا ہوتا، صرف یہی ایک سورت آ جاتی والعصر کی، یہ ہمارے لیے کافی تھی. اس میں پورا جو ہے آپ کا کامیابی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نسخہ دے دیا کہ 2 چیزیں آپ اپنے آپ پہ کر لیں اور 2 جو ہے معاشرے پہ، یہ 4 کر لیں تو کامیابی. آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں ماننا برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد. انسان نقصان میں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دور رہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں. تو آپ اپنی جگہ پر اسے دہرائیے. الف، آئیے اس پہ سوالات دیکھتے ہیں. خسر کا معنی ہوگا، ہاں جی کیا ہو گیا؟ ہو گیا ہلاکت، نقصان، فائدہ، ABCD. جی نقصان. سورۃ اثر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں؟ 1 3 2 4. ABCD. 1. برادر آپ سو رہے ہو، ابھی تو میں نے کہا 4 کا صیغہ لیا. 4 جو اللہ تعالیٰ شدت سے جو ہے چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا. آئیے قرآن کو زندگی میں لانے کے لیے حضرت کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں، جنہوں نے پہل کی تھی. ہم نے پڑھا تھا مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احتساب ہو دوسرے زمانے کا اور پلان بنائے مستقبل کا. تو اگلا حصہ سورۃ مبارکہ کا لیتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الا سوائے، الذین ان لوگوں کے، آمن ایمان لائے. یہ آمنو جو ہے کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ جمع ہے. واو این الف آ رہا ہے اس کے آگے. واو الف آیا آخر میں. جب واو الف آ گیا تو اب یہ بتائیں اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل. اسم نہیں اسم نہیں ہے. فعل ہے. فعل ہے. فعل کے آخر میں جو ہے تبدیلی آتی ہے، واو الف آتا ہے یا تا زبر آتا ہے یا تا پیش آتا ہے یا اس کے اندر جو ہے تم آتا ہے یا نہ آتا ہے، اس سے ماضی کے صیغے پہ چلتے ہیں. وَعَامِلُوا، اور عمل کیے، صالحات نے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے تو کیا کہا؟ سارے انسان خسارے میں، بات ہی ختم ہوگی. اب ہم نے کہا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی نجات کا رستہ ہو. کہا ہاں ایک صورت ہے، کیا؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. کون سے اللہ میاں؟ آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک. ایک تو یہ ہو گیا، ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. یہ اس کی تشریحات دیکھتے ہیں. اللہ کے میں نے سوال کی مثال جیسے اللہ کو ہم کس سے یاد کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. وہاں پہ اللہ کے معنی ہم نے سوال کے دیکھے. اور اللہ زینہ کو ہم یاد کرتے ہیں کس سے؟ صراط اللہ زینہ انعمت علیہم، ہم نے پڑھا تھا سورۃ فاتحہ میں. اللہ زینہ، ان کا جو لوگ، آمنو، یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے، یہ فعل ہے، ایمان لائے. ایمان اور مومن یہ جو ہے ہم عام استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. وعاملوا، اور اردو سب نے عمل کیا. کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ جی نیک عمل کرتا ہے. صالحات کا مطلب ہے نیک. یہ صالحات جو ہے یہاں پہ کون مجھے بتائے گا؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس تا اس کے اینڈ پہ آیا ہے. واحد ہے، جمع ہے؟ جمع ہے. اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے.
कैसे पता चला? अलिफ लाम इसके स्टार्टिंग में है। देखिए एक ही लफ्ज को देख कर आपको उसके बारे में 3 चीजें पता चल गई कि ये इसम है, मोन्निस है और जमा का सीगा है। ये आपकी एक तरह से जो है वो ज़हन की तरबियत है कि आपने जैसे कुरान में किसी लफ्ज को देखना है उसको पहचानना है क्या है, ये इसम है, फेल है, हर्फ है, और वाहिद है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप तर्जुमा करेंगे तो ज़हन की फिर ये देखिए साले जो है एक लफ्ज होता है जिसके मैंने होता है नेक, अच्छा, इसकी जमा होता है सालिहून, 2 पेश वाले के लिए वाव नून हम लगाते हैं, और अगर 2 ज़बर 2 ज़ेर हो जैसे सालेहन सालेहिन तो उसके लिए या नून लगाते हैं सालेहीन, और इसकी मुअन्नस बनाने के लिए गोल ता लगाते हैं तो सालेहातुन, और अलिफ में अलिफ ता लगाए तो सालेहात। तो ये जो है इनके वो तरतीब की। आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर, एहतसाब करें कि हमारा ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है, और प्लान बनाए ईमान की मजबूती का, कुरान और सुन्नत का मुताला करें, नेक लोगों का साथ दें और तबलीग करें दूसरों को भी इस चीज की, और उनको भी जो है खसारे से बचाएं। आइए इसके असबाक लेते हैं। नुकसान में वो लोग नहीं है जो ईमान लाए और नेक काम किए। तो लिहाजा गहरे तसव्वुर एहसास के साथ अपनी जगह इस जो है आयत मुबारका को दोहराइए। अल्लिम, आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। अस्सालिहात का मायने बताइए। बुरे अमाल, अच्छा अमल, अच्छे अमाल, अच्छा ABCD जी। आमनू का तर्जमा कीजिए। वो ईमान लाया, वो सब ईमान लाते हैं, वो ईमान लाता है, वो सब ईमान लाते हैं, ABCD डी, वो सब ईमान लाए। वो सब ईमान लाए। सालिहात की जमा बताइए जी। सालिहात, सालिहीना, सालिहीना, साले जी। सालिहात, निजात के लिए ये करना जरूरी है। एक से जायद जो आपका इंतखाब कीजिए। ईमान, एक दूसरे को हक की वसीयत करना, दावत, एक दूसरे को हक की सब्र की तलकीन करना, ABCD एक दूसरे को हक चारों ACOD चारों सही थे। हक को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए एक से जायद जवाब का इंतखाब कीजिए। कुरान को समझिए, सीरत को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, हालात हाज़िर पर नजर रखिए, ABCD ये चारों ही सही थे। आइए अगला हिस्सा लेते हैं। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। 4 लफ्ज हैं, पूरी आयत में 4 लफ्ज। इसका मतलब है कोई अहम चीज है। आइए देखते हैं वो क्या है। वाह तवा, वाह के मैंने तवासौ यानी एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक़ के, हक की, वतवासौ और एक दूसरे को नसीहत की, बिस्सब्र सब्र की। आइए इसका तज़किरा करते हैं। वतवासौ और एक दूसरे को वसीयत की। एक लफ्ज होता है दरासा, दरासा के मानी है पढ़ा, उससे दर्रासा दे के ऊपर शद जब आ जाती है तो उसके मानी है पढ़ाया। दरासा के मानी है पढ़ा यानी उसने पढ़ा, दर्रासा उसने पढ़ाया। तदारसा इसके मानी होता है एक दूसरे को पढ़ाया। यही तदारसा के ऊपर ये तवासौ है, यानी इससे बनता है जैसे तदारसु उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, इसी तरह तवासौ ये उसी वजन के ऊपर पड़ता है, यानी उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। किस चीज की? हक यानी सच की। हक कहाँ है? कुरान और सुन्नत में। कुरान में सारी तफसील के अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह तवासौ बिल हक और तवासौ बिल सब्र किया करते थे। गोया ट्रेनिंग है इस काम की। कुरान ही समझ में ना आए तो कैसे ज़हन में बैठेगा और दूसरों को क्या बताएंगे। बिल सब्र, बी के मैंने यहाँ के हालांकि बी के हमने पहले पढ़े थे 7। ये जो हरूफ जर हैं ये अपनी मायने बदलते रहते हैं। अस्सब्र, सब्र की। ये अस्सब्र जो है ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है, क्या है? इस समय कैसे पता चला? अलिफ लाम अलिफ लाम आ रहा है, यानी जब हमने बे को हटाया तो पीछे देखिए अलिफ लाम वाज़ेह नजर आ गया। तो सब्र के मानी होता है साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और डटे रहना। सब्र हमें 3 चीजों पर करना, नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना,
मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक पहुंचाने की तौफीक दे, एहतसाब करे, कुरान और हदीस और सीरत का मुसलसल इल्म हासिल करता हूँ और अल्लाह से सीखता हूँ, सही तरीके के बारे में सीखूं और प्लान बनाए इल्म हासिल करने का, दावत का, और किस माहौल में और कैसे करेंगे और दूसरों को कैसे पहुँचाएंगे। तो आइए इस आयत मुबारका के असबाक लेते हैं। नुकसान से बचाने वाली चीज़ों में ईमान और अमल साले अच्छे काम के अलावा और काम भी है, जैसे दूसरों को सच्ची हक बात बताना, उसकी तबलीग करना, दूसरों को दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त सब्र की नसीहत करना, दूसरों को सच्ची बात बताते हुए तो हमारे पास बताने के लिए बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए कि आप उसके पास कैसे जो है किस तरीके से किसी को ये बताएंगे, अपने वालिदैन, दोस्तों और दूसरों के साथ मिलकर उस पर कैसे अमल करेंगे। यहाँ देखिए वाहिद जम्मा के सिगे आए हैं, वह तवासो जम्मा का सिगा है। कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पर मुखातिब किया गया है। बड़ा काम हमेशा एक दूसरे से साथ मिलकर करने से होता है। क्या आप भी मिलकर करते हैं? हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लीजिए जो आपके साथ रहे, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई कराए। नेकी पर, मुश्किलात पर सब्र कीजिए और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ होती है उस पर भी सब्र कीजिए और दूसरों को भी सब्र करने की बात बताते रहिए। ये देखिए दो लफ्ज है, वाह और आओ। वाह के मैनी होता है और आओ के मैनी होता है या। आओ के मैनी या। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में कहीं भी आओ नहीं कहा, यानी या नहीं कहा, बल्कि कहा वाह वाह, यानी ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, यानी चार चीजें जो बताई, क्या चारों के साथ वाव का सीगा आया, यानी और इसका मतलब ये है कि ये चारों चीजें लाजिम है। अगर आप ये इनमें से किसी एक को भी छोड़ देंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो आप जो है खसारे से नहीं बच सकते। खसारे से वही बचेगा जो इन चारों चीजों पे अमल करेगा, ईमान भी लाएगा, नेक अमल भी करेगा, एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करेगा और एक दूसरे को हक की तलकीन भी करेगा। जो सीधा जो उसके अंदर है वाव का है। अगर आओ या का होता तो फिर होता कि अच्छा ये कर लो या ये कर लो, ईमान ले आओ या नेक अमल कर लो, या ईमान ले आओ नेक अमल कर लो या दूसरों पर, ये नहीं कहा। तो आइए इसके बकाया हिस्से देखते हैं। जिस बंदे में ये चारों सिफात में एक वक्त पाई जाए वो खसारे में रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है यानी और, यानी खसारे से बचने के लिए बैक पर इन चारों सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिर्फ के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाव की जगह वाव यानी या की मायने जो है वो फरमाते। तो अपनी जगह जो है इसे दोहराइए। अल्लाह अब हम पूरे तसव्वुर एहसास के साथ इस सूरत मुबारक को एक बार फिर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। याद रखिए सूरत असर जो है उसका खुलासा ये है कि मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। वह तवासौ का मायने बताइए। और उन सब ने एक दूसरे को सिखाया और उन सब ने वसीयत तलकीन की एक दूसरे को और वो सब सिखाते एक दूसरे को और उन सब ने एक दूसरे की मदद की। ABCD जी बी मायने है एक से जायद जो आपका इंतखाब कीजिए। नेकी करना मुश्किल हो तो सब्र करना, मुश्किलात पर सब्र करना, गुनाह से बचने पर सब्र करना, तकलीफ पर सब्र करना। ABCD जी सारे चारों दुरुस्त। ईमान को मजबूत करने के लिए एक से जायद जो आपका इंतखाब कीजिए। कुरान और हदीस समझकर पढ़िए, अल्लाह की मखलूक़ात पर गौर कीजिए, सीरत का मुताला कीजिए, अपनी पैदाइश और मौत को याद रखिए। ABCD ये भी चारों है। तो ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल होता है। आपका अगर कोई एक आध सवाल है तो वो कर लीजिए, वरना फिर हम अगले हिस्से की तरफ पढ़ेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है।
सिस्टर कलसूम, उम्मे कलसूम जी सिस्टर। सर जिस तरह हम जमा बनाने के लिए दो पेश हैं तो ये नून लगाएंगे, और जब जेर जबर दो जेर हैं तो वो नून लगाते हैं। तो इसी तरह मुअन्नस बनाने के लिए अगर पेश है तो हमने गोल ते हटा के तो दूसरी ता लगा दी। सिस्टर ये आगे हम इसको बड़ी तफसील से पढ़ेंगे ग्रामर के हिस्से में, और आपकी रिवीजन में भी आ जाएंगी। इस सवाल को उस वक्त तक के लिए उठा लीजिए। इस वक्त सिर्फ आयत पे तवज्जो रखिए, सूरत पे, सूरत असर के बारे में। ये एक जामे और बहुत ही मुकम्मल है। इतना है कि अगर कुरान पाक ना आता तो सिर्फ ये एक सूरत भी पूरी थी हमारे। तो आइए अगले हिस्से को लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हिस्से में हम ग्रामर जो है वो पढ़ते हैं, और ग्रामर जो है उसमें आज इंशाल्लाह हम दारबा, सामिया, आलिमा, आमिला जो है ये 4 नए अफ़ाल जो है उनकी एक प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले टीपीआई। टीपीआई का मतलब है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। मतलब ये है कि अपने जिस्म की तमाम हिस्सों को सुनने, देखने, सोचने, बोलने, हरकत और सकनात को इस्तेमाल करें और दिल से करें, और अपने साथ किसी साथी को बनाएं और उसे भी जो है सिखाएं और उसके साथ मिलकर सीखें। हमने ये देखा था अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। इसम किसी चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम मोमिन, और उसकी पहचान ये होती है या तो उसके शुरू में अलिफ लाम आता है, या आखिर में तनीन, 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर आते हैं, या अगर जमा का जो है वो कलमा हो तो उसके आखिर में वाव नून या अलिफ ता। फिर हमने पढ़ा था फेल, ऐसा कलमा या लफ्ज जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें क्या है जमाना पाया गया। और तीसरा हमने देखा था हर्फ, जो इसम और कुरान यानी फेलों को जो है मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, ना। यानी कुरान में ये जितने भी अल्फाज हैं, कुरान पूरे का पूरा इन 3 चीजों पर मुश्तमिल है, या वो इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ। तो इसलिए इसका आपको पक्का पता होना चाहिए। हमने फिर फेल शुरू किए थे। हमने ये देखा अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम से फाला बना, फाताहा से फताहा बना, नून स्वाद रा से नसरा बना, दाद रा से दराबा बना। फिर हमने ये भी देखा जमाना जो है वो उसकी 3 इकसाम होती है। फेल माजी जो हो गया परफेक्ट टेंस, फेल मुदारे जो भी तक नहीं हुआ या हो रहा है इम्परफेक्ट टेंस, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना इम्परफेक्ट इम्परेटिव जो है वो टेंस। फिर हमने ये फेल माजी शुरू किया। हमने देखा फेल माजी का टेबल फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। और फिर ये हमने देखा कि इसकी पहचान क्या होती है। वाव अलिफ या तो आखिर में आ रहा होता है, या ता ज़बर, या फिर जो है ता पेश, और या फिर जो है तुम, या फिर जो है ना। और एक सीगा आज आपके लिए मैंने इजाफा किया है, फ़अलत। फ़अलत ये मुअन्नस के लिए होता है कि उस मुअन्नस ने किया। देखिए इसकी पहचान होती है ता साकिन, जिस पे ना ज़ेर होता है, ना ज़बर होता है, ना पेश होता है आखिर में। फिर हमने देखा मुदारे का टेबल, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। और इसकी पहचान क्या थी, शुरू में या तो या आता है, या ता आता है, या हमजा आता है, या फिर जो है नून आता है। ये 4 इलामतें जो है वो मुदारे की इलामात कहलाती हैं, ये शुरू में आती हैं, और ये जो है ये फिर उसके बाद ये गुज़श्ता जो है इस बात के चंद सवाल आगे हैं, वो कीजिए। मा फ़अलतुम, तुम का सीगा है, आप सबने नहीं किया, उन सब ने नहीं किया, हम सब ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ABCD जी। आप सबने नहीं किया। तर्जुमा कीजिए, वला आना आबद, और ना आप इबादत करने वाले, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ, और ना वो इबादत करने वाला है, और ना वो एक औरत इबादत करने वाली है। ABCD जी। और ना मैं इबादत करने, मैं इबादत कर। तर्जुमा कीजिए, वलक़द खलक़तु, और तहकीक मैंने पैदा की, और तहकीक उसने पैदा किया, तहकीक मैंने पैदा की, और तहकीक आपने पैदा किया। तू आया ABCD मैंने पैदा किया। आइए आज का सबक देखते हैं। ग्रामर में हमारे लिए क्या है। ये हमने शुरू किया था कि 4 अबवाब होते हैं, तमाम अफ़आल
ان کسی ایک ابواب کے دروازے سے جو ہے داخل ہوتے ہیں. پہلا جو باب ہے اس کا نام ہے فاتح یفتح، یہ اس کا جو ہے باب ہے. دوسرا ہم نے دیکھا تھا باب نون سے ہوتا ہے ناصرہ ینصر، اس کے جو ہے مضارع میں پیش آتا ہے جو اسے اس باب سے فرق کرتا ہے. تیسرا جو ہے ضاد سے ضربا یضرب، اس میں جو ہے یہ دیکھیں مضارع میں زیر آتا ہے درمیان. چوتھا باب نے دیکھا تھا سامع یسمع، اس میں شروع میں ہی درمیان میں جو ہے زیر آ گیا، تو اس سے جو ہے یہ ان تینوں سے مختلف ہوتا ہے. تو اس QC 1 کے اندر آپ نے صرف یہی 4 ابواب سیکھنے ہیں، تو لہٰذا ان 4 کو آپ نے پکا کرنا ہے. فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سامع یسمع. آئیے ابھی دیکھتے ہیں. آج ہم جو ہے فعل مضارع کی پریکٹس کے لیے ضربا، سامع، عاملہ اور عاملہ اور عالمہ جو ہے نا وہ کریں گے. آئیے ضربا، اس کا ماضی کا آپ کو پتا ہے ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. آئیے اس کا مضارع کرتے ہیں. یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا، وہ مارتے ہیں یا ماریں گے. 3 بار دہرائیے. یضربو، یضربونا، یضربو، یضربونا، یضربو، یضربونا. اگلا صیغہ لیتے ہیں تضربو، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا. 3 بار دہرائیے. تضربو، اضربو، تضربو، اضربو، تضربو، اضربو. اگلا صیغہ لیتے ہیں تضربونا، آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو، ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. 3 بار دہرائیے. تضربونا، نضربو، تضربونا، نضربو، تضربونا، نضربو. اب آپ کی باری ہے، ہینڈ ریز کیجیے. اس ٹیبل کو کون کروائے گا؟ جی کلثوم، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ کے ریز کیا، آپ پہلے دہرائیے پھر سکھاتے ہیں. یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا، وہ مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تضربونا، آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو، ہم مارتے ہیں یا سب ماریں گے. مسز خالد ریزہ آپ کرائیے. جی مسز خالد. اچھا ٹھیک ہے. یضربو، وہ مارتے ہیں یا مارے گا. یضربونا، وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تضربونا، آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. جی روبینہ فاضل، آپ کی باری ہے ابھی. جی یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا، وہ مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تضربونا، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. جی شگفتہ، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ بھی دہرا دیجیے پھر آگے چلتے ہیں. یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربونا، وہ مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو، آپ مارتے ہیں یا ماریں گے. اضربو، میں مارتا ہوں یا ماروں گا. تضربونا، آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. نضربو، ہم مارتے ہیں یا ماریں گے. چلیے آگے مکالمہ آ گیا، آپ سب مل کے جواب دیجیے. حل یضرب، کیا جواب ہوگا؟ نعم یضربو. نعم نہیں کہتے تو یہ ہوتا ہے مارنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن لا یضربو، لا یضربو، لا یضربو. مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ مضارع اس سے لا کل ہے. اچھا حل یضربونا، اس کا بھی جواب ہوگا لا یضربو. یضربونا. اور اگر میں کہوں حل تضربو، لا اضربو. تضربو سے جواب دیں گے. حل تضربونا. آئیے دیکھیں حامد جو ہے یہ کیا ہے، حالت ہے کیا کہ اس کے اوپر جو ہے 2 پیش آ، اور جب 2 زبر آئے تو یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے، مفعولی حالت ہے. ہم یہ مفعولی حالت استعمال کریں گے. آئیے دیکھیے مکالمہ ہے. حل یضربو حامد، اس کا مطلب ہے کیا وہ مارتا یا مارے گا حامد کو. تو کیا جواب ہوگا؟ نام لا دیجیے. یضربو. لا یضربو حامدا. نعم یضربو وہی تو حامد. سوال ہے، وہی ہوگا، صرف حل کی جگہ لا کا اضافہ ہوگا.
हल यदरिबूना हामिदन, अब क्या जवाब होगा? ला यदरिबूना हामिदन, ला यदरिबूना हामिदन। और अगर मैं कहूँ हल तदरिबू हामिदन, अब क्या होगा? ला अदरिबू अदरिब ला अदरिबू हामिदन। और अगर मैं कहूँ हल तदरिबूना हामिदन, ला नदरिबू ला नदरिब ला नदरिबू, तदरिबू का जवाब नदरिबू सुनेगा। वह यदरिबू, और वो मारता है और वो मारेगा और उसने मारा और आप मारते हैं, ABCD। ए और बी, ए और बी बी ये अभी हमने देख लिया था, फतहा यफ्तहू यफ्ता। अगला जो है वो जब हम अमर पढ़ेंगे फिर उसे पढ़ेंगे। ये पूरा इस तरह बनता है, फतहा यफ्तहू इफ्ता, लेकिन अभी हम सिर्फ पहले दो ही लेंगे। फतहा यफ्तहू, नसरा यंसुरू, दरबा यदरिबू, समिया यस। तो आइए आगे चलते हैं। समिया आ गया, सामिया सामिऊ, समेता समेतु, समेतु समेना। इसका मुदारे लेते हैं, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे। 3 बार दोहराइए, यस्माऊ यस्माऊना, यस्माऊ यस्माऊना, यस्माऊ यस्माऊना। अगला सीधा लेते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा। 3 बार दोहराइए, तस्माऊ अस्माऊ, तस्माऊ अस्माऊ, तस्माऊ अस्माऊ। अगला सीधा लेते हैं, क्या है? तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। 3 बार दोहराइए, तस्माऊना नस्माऊ, तस्माऊना नस्माऊ, तस्माऊना नस्माऊ। अब आप लोगों की बारी है, चलें जी। हाँ जी जासिफ खान, जी सर। शाबाश। उसके बाद यस्माऊ, चले यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्मा हम सुनते हैं या सुनेंगे। जी शाबाश, आपकी बारी है। अभी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं या सुनेंगे। जी मिसिस खालिद, आपने हैंड रेज किया था, आप दोहराना चाहती हैं तो दोहरा दीजिए। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जी अलीना आबिद, आपने अनम्यूट किया हुआ है, क्या आप दोहराना चाहती हैं तो दोहरा दीजिए। वो नहीं दोहरा रही, चले रुबीना फासिला चलिए दोहरा दें, फिर उसके बाद गुप्ता से कराते हैं, बारी उसकी थी। चलिए यस्माऊ वो रुबीना दोहरा सुनता दीजिए। है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ वो सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सुनते हैं आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सुनते हैं या हम सुनेंगे। तस्माऊना आप सब सुनते हैं। जी शुगुफ्ता, आपकी बारी है, आप दोहरा दीजिए। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्ता। आइए इसके मुकालमे देखते हैं। माज़ा यस्माऊ वो क्या सुनता है? हाँ जी जवाब दीजिए। यस्माउल कुरान, यस्माउल कुरान, कुछ भी कह सकते हैं आप, यस्माउल कुरान भी कह सकते आजान हैं, और आजान भी कह सकते हैं। माज़ा तस्माऊना, अब क्या होगा? वो सब क्या सुनते हैं? हाँ जी, तस्माऊनल कुरान, कुरान, तस्माऊनल आजान, कोई भी चीज जो वो सुनने की है। हाँ, माज़ा यस्माऊना, अगर मैं ये कहूँ यस्माऊना, पहले तस्माऊना था, तो यस्माऊना का क्या होगा? हाँ इसमें आएगा यस्माऊनल कुरान। यस्माउल अल कुरान, तस्माऊना का जो है जवाब क्या होगा?
ये अभी मैं फर्क बताने के लिए आपको ये दोनों चीजें सामने ला रहा हूँ. माज़ा तस्मऊन, यसमऊन अल कुरान, नस्मऊल कुरान. ये तस्मऊन का जवाब नस्मऊ से है. ये यस्मऊ जो है इसका जवाब यस्मऊ से ही हो जाएगा. यस्मऊना का भी इससे, लेकिन जहाँ लफ्ज़ तस्मऊन आएगा तो आपने याद रखना है जम्मा नस्मऊना की तरफ चलेंगे. तो ये देखिए यस्मऊना के लिए यस्मऊना ला गया. माज़ा तस्मऊ, तू क्या सुनता है? अब क्या जवाब होगा? अस्माउल अस्माउ। कुरान। अस्मऊल कुरान. असमऊ माज़ा, तो ये देखिए माज़ा तस्मऊना नस्माउल नस्मऊ. कुरान। आइए इसके सवाल लेते हैं. ला यस्मऊना की मायने बताइए. वो सब नहीं सुनते हैं, उन सब ने नहीं सुना. वो सब सुनते हैं, वो सब नहीं सुनेंगे. ABCD. ला A यस्मऊना. और सब D. सुनते हैं. A और D. गुड. माज़ा यस्मऊ, यस्मऊनल कुराना, यस्मऊल कुराना, तस्मऊनल कुराना, समिउल कुराना. ABCD. यस्मऊ है. यसमऊल कुरान, यस्मऊ का जवाब यस्मऊ. हाँ आइए जी. अपना जो है टेबल लेते हैं. आलिमा, इसका माजी हमने देखा था. आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना. आइए इसका मुदारे देखते हैं. यालम, वो जानता या जानेगा. यालमुना, वो सब जानते या जानेंगे. 3 बार दोहराए. यालमु, यालमुना, यालमु, यालमुना, यालमु, यालमुना. अगला सीखा लीजिए. तालमु, आप जानते हैं या जानेंगे. आलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा. 3 बार दोहराई. तालमु, आलमु, 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 तालमु, आलमु. अगला सीखा लेते हैं. तालमुना, आप सब जानते हैं या जानेंगे. नालमु, हम सब जानते हैं या जानेंगे. 3 बार दोहराइए. तालमुना, नालमु, तालमुना, नालमु, तालमुना, नालमु. अब आपकी बारी है. हैंड रेज कीजिए. जी कौन कौन दोहराएगा? जी उम्मे कलसूम, आप दोहरा दीजिए पहले. यहलमु, वो जानता है ये जानेगा. यहलमुना, वो सब जानते हैं ये जानेंगे. ताहलमु, आप जानते हैं ये जानेंगे. अहलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा. ताहलमुना, आप सब जानते हैं ये जानेंगे. नाहलमु, हम सब जानते हैं ये जानेंगे. जी शाबाश ब्रदर, आपकी बारी है. अब आप दोहरा दीजिए. यालमु, वो जानता है या जानेगा. यालमूना, वो सब जानते हैं या जानेंगे. तालमु, आप जानते हैं या जानेंगे. आलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा. तालमूना, आप सब जानते हैं. तालमु, हम सब जानते हैं या जानेंगे. जी रुबीना, आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप भी दोहरा दीजिए. कि यालमु, वो जानता है या जानेगा. यालमूना, वो सब जानते हैं या जानेंगे. तालमु, आप जानते हैं या जानेंगे. आलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा. तालमूना, आप सब जानते हैं या जानेंगे. नालमु, हम सब जानते हैं या जानेंगे. जी शगुफ्ता, आप भी दोहरा दीजिए. यालमु, वो जानता है या जानेगा. यालमुना, वो सब जानते हैं या जानेंगे. तालमु, आप जानते हैं या जानेंगे. आलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा. तालमुना, आप सब जानते हैं या जानेंगे. नालमु, हम सब जानते हैं या जानेंगे. जी अलीना, आप दोहराना चाहेंगी? आपका अभी तक अनम्यूट है या आपको पता नहीं कि आप अनम्यूट हैं? जी रुबीना फाजिल, आपने हैंड दोबारा रेज कर लिया. चलिए आगे चलते हैं. दोहराना चाहते हैं दोहरा दें, कोई मसला नहीं. यालमु, वो जानता है या जानेगा. यालमूना, वो सब जानते हैं या जानेंगे. तालमु, आप जानते हैं या जानेंगे. आलमु, मैं जानता हूँ या जानूंगा. तालमूना, आप सब जानते हैं या जानेंगे. नालमु, हम सब जानते हैं या जानेंगे. जज़ाकल्लाह खैर. आइए देखते हैं इसका सवाल जवाब. व तालमूना का मायने होगा आप सब ने जाना, आप सब जानते हैं, और आप सब जानेंगे, और आप सब जानते हैं. ABCD. आप सी और डी, आप सब सी और और आप सब जानेगा, सब जानेगा. दुरुस्त फरमाया. तर्जमा कीजिए. अफला यालमूना, तो क्या वो नहीं जानते? तो क्या वो सब नहीं जानेंगे? वो नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते? ABCD. ए तो क्या वो सब वो नहीं सब नहीं जानेंगे? जानते. तो क्या वो नहीं जानते? अल तालमुल कुराना. हाँ जी. ना आलमुल कुराना, नाम मिलतुल कुराना, नाम नालमुल कुराना, नाम यालमुल कुराना. ABCD. जी नाम आलमुल कुरान.
अरबी बनाइए। क्या आप सब जानते हैं? हल तालमू, हल यालमूना, हल अलिमतुम, हल तालमूना, ABCD। हल डी तालमूना डी। आइए अगला जो है वो टेबल करते हैं आमिला का। इसका माजी हमने पढ़ा था आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना। आइए इसका मुदारे देखते हैं। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। 3 बार दोहराइए। यामलू, यामलूना, यामलू, यामलूना, यामलू, यामलूना। अगला सीगा देखते हैं। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। 3 बार दोहराइए। तामलू, आमलू, तामलू, आमलू, तामलू, आमल। अगला सीगा लेते हैं। तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं। 3 दोहराइए। तामलूना, नामलू, तामलूना, नामलू, तामलूना, नामलू। अब आपकी बारी है, हैंड रेज कीजिए जी। कौन कौन दोहराए? यस तबस्सुम हमारा आपने अभी तक कोई टेबल नहीं कराया, सिस्टर आप इसे दोहराए सबसे पहले। यामलूना वो अमल करते हैं, यामलूना वो सब अमल करते हैं। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। तामलूना तो आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। हाँ जी, उसके बाद शगुफ्ता, हम नीचे से अभी ऊपर जा रहे हैं। शगुफ्ता आपकी बारी आती है। वो तो है ही नहीं। चले शाहबाज आप दोहरा दीजिए। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, आमलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जी मिसेस खालिद अब जी आपकी बारी आ गई है। ठीक है। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जी शगुफ्ता आप अगर है तो दोहरा दीजिए, नहीं वरना मैं आगे जाऊँ। जी सर, यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जी वो अभी दरमियान में किसने हैंड रेज किया था? रूबीना थी या कलसूम थी? उम्मे कलसूम थी शायद। हाँ दोहराइए सिस्टर। यामलू वो अमल करता है या करेगा, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, ताहमलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आहमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, ताहमलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नाहमल हम सब अमल करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आइए इसका अगला हिस्सा लेते हैं। यालम, ये आलिमा के टेबल पे। आलिमा को देखिए, आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, ये माजी था। मुदारी इसका क्या होगा? यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे। 3 बार दोहराइए। यालमू, यालमूना, यालमू, यालमूना, यालमू, यालमूना। अगला फिगर देते हैं। तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा। 3 बार दोहराइए। तालमू, आलम, तालमू, आलम, तालमू, आलम। अगला सीगा लेते हैं। तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या जानेंगे। 3 बार दोहराइए। तालमूना, नालमू, तालमूना, नालमू, तालमूना। अब आपकी बारी है, हैंड रेज कीजिए। कौन कौन दोहराना चाहता है? जी शगुफ्ता आप अनम्यूट है, सबसे पहले आप ही दोहरा दीजिए, फिर बाकियों से कराते हैं। यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या जानेंगे। जी शाहबाज आपकी बारी आ गई, चलिए अनम्यूट हो जाइए। जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू मैं हम सब जानते हैं या जानेंगे। चले ये इसके सवाल जवाब लेते हैं। हल तालमू सालिहन, नाम आमिल
तू सालिहन, नाम तामलु सालिहन, नाम आमलु सालिहन, नाम यामलु सालिहन, ABCD। जी क्या दुरुस्त होगा? आमलू नाम सालिहन। आमलु सालिहन। सी आएगा सी। जी सी सही है। हल तामलुना खैरन, नाम आमिलना खैरन, नाम नामलु खैरन, नाम तामलुना खैरन, नाम यामलु खैरन, ABCD। जी दी नाम नाम नाफलु नामलू नामलु। अच्छा, ये आपके लिए हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज बना दी थी। यदरिबू से क्या होता है? यदरिबूना। इसी तरह यस्माऊ से क्या होता है? यस्माऊना। और यालमू से क्या होगा? यालमूना 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 और अगर यालमूना। यामलू हो तो उससे क्या होगा? यामलूना यामलू यामलूना। वेरी गुड। अगर ये हो जी, क्या है ये? तदरिबू तदरिबूना अदरिबूना अदरिबू। तदरिबू का हमेशा आएगा अदरिबू। और अगर ये होता है तो क्या होगा? अस्माऊ तालमू का क्या होगा? आलम अमलू का क्या होगा? तभी आमलू जब भी आमलू। के साथ वाहिद आता है तो इसके साथ हमजा के साथ जो है ये वाहिद आएगा। तदरिबू अदरिबू, तस्माऊ अस्माऊ, तालमू आलमू, तामलू आमलू। इसी तरह ये देखें तदरिबूना, इसका क्या आएगा? नदरिब नदरिबू होता है। नदरिबू तस्माऊना का क्या होगा? तालमूना का क्या होगा? नालमू नालमू और तामलूना का क्या होगा? नामलू नामलू याद रखिए, ये जब जमा का सिगा आता है तो उसके जवाब में हमेशा जमा लाते हैं। जैसे तदरिबूना नदरिबूना, तस्माऊना तालमूना नालमूना, तामलूना नामलू। आइए आपके ये टेबल जो है दोहरा दीजिए मेरे साथ जल्दी से। यस, कौन दोहराएगा इस टेबल को? यदरिबू को दोहराए, मिलके दोहराए। यदरिबूना के बाद यदरिबूना आगे तदरिबू अदरिबू तदरिबूना नदरिबू यस्माऊ का टेबल दोहराइए। यस्माऊ यस्माऊना यस्माऊना अस्माऊ अस्माऊ अस्माऊना नस्माऊ यस्माऊना and यस्माऊना यालमूना आलमू आलमूना अगला यामलू का यामलूना यामलूना तामलू यामलूना आमलू तामलूना आमलू नामल and नामल नामल। आइए ये जो है अरबी के जुमले इनका तर्जमा कीजिए। अन्नासु यदरिबूना, अन्नासु यानी लोग, यदरिबूना यदरिबूना वो लोग लोग मारते हैं। अंतुम का सीधा है। कुरान सुनते हैं यालमु खैरुम, बेशक जानता है खैर और शर। तामलूना, अल्लाह जानता है अल्लाह जानता है जो तुम सब कर अमल करते हो। वहुम फीहा ला यस्मऊना। जी, और वो नहीं सुनते और वो सब इसमें नहीं सुनते हैं। आइए लेते हैं उर्दू के जुमले इनकी अरबी बनाइए। वो उस औरत को मारता है, वो मारता है कि यदरिबूहा यदरिबूना यदरिबूना नहीं होगा, हाँ, यानी यदरिबूहा वो औरत को मारता है। जो लोग सुनते हैं कुरान, जो लोग सुनते हैं, यस्माऊना यस्माऊना कुरान। क्या आप जानते हैं? आप सब अच्छे अमल करते हैं, आप सब अच्छे अमल करते हैं। तामलूना सालिह, सब इस पर अमल करती हैं। अल्लाज़ीना यामलूना अलैहि। अरबी में जवाब दीजिए। हल तदरिबू ज़ैदन,
ला ला तदरिबु ला के साथ भी दे सकते हैं और नाम के साथ भी दे सकते हैं, दोनों सही है। हल कसमुल कुरान फी सलातिल मगरिब, क्या आपने मगरिब की नमाज सलातिल मगरिब हल तामलून फिल मस्जिदी, नाम 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 यालमु मा तामलूना, नाम नाम यालमु मा हल तामलून नासा, नाम अल्लाह तामलू का आमलू आएगा, नाम आमलू नासा। हम जो कुछ पढ़ते हैं वो हमारी याददाश्त में होता है। अगर हम ऐसा ऐसा बदल बदल के नमाज में पढ़ेंगे तो वो जो है हमारी याददाश्त जो है बेहतर होती जाएगी और हम जो है वो बेहतर जो है वो कुरान को समझ सकेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो सूरतें याद करें, नहीं पढ़ाएं। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, एक ही को मत पढ़े। खास तौर पर उन सूरतों को तो जरूर पढ़ें जिनके मायने आपको हैं। जैसे अभी इस कोर्स के दौरान आपको सूरतें जो है तफसील से पढ़ाई रहे हैं या पढ़ाएंगे तो ये आपको ज़बानी याद हो जानी चाहिए। और कोशिश करें कि इनको बदल बदल के कम से कम 6 तो आए, और जब ये 6 पक्के हो जाए तो मजीद और सीख लीजिए। इसके कई फायदे हैं। एक तो ये आपको तिलावत से खुशी होगी कि आपको समझ आ रही है, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर होगा। अल्फाज मायनी का इयादा होगा, यानी दोहराई होते रहेगी, आपका हाफजा जो है पुख्ता होता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, आज के सबक 14 के इख्तिताम पर आपने 174 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान पाक में तकरीबन 36,500 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने टारगेट के बहुत ही करीब पहुंच गए। 7 होमवर्क जो है आपने जो है हमेशा याद रखने हैं। 2 तिलावत के हैं कि आपने जो है ये मसद जो है उससे देख के 5 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ज़बानी पढ़ना है। और उसके अलावा जो है 2 काम आपके ये किताब के होते हैं, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से जो है देख के सबक अपना जो है पढ़ना होता है। और इसी तरह होमवर्क बुक जो है ये आपके इससे जो है वो करना होता है। फिर आपकी एक और चीज जो है वो है आपका ये कार्ड, यानी ये जो बुक शीट है या बुक पॉकेट्स है जिसको आप जेब में और अपने पर्स में रख सकते हैं। इसे आपने हर नमाज से पहले ये बात जो है वो पढ़ना होता है। और अपने किसी साथी को चुनिए, उसके साथ याद रखें आपको अल्लाह ताला ने इस कोर्स के लिए मुंतखब किया है। अपने इस इंतखा को जो है नज़रअंदाज मत कीजिए, जब भी जितनी इल्मा का जो है वेट करते रहिए। और आखिर में हम जो है दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो सबक तो आपका पूरा हुआ, अब आपके आते